Hello my dear friends, I'm Professor Mayam Khan and in today's video we are going to study the nitriding process as well as the surface hardening processes. In previous video of this unit number 3 we have studied the type of case hardening process which is called as carburizing, and in that carburizing we have completed uh, gas carburizing, liquid carburizing and pack carburizing. So the basic difference between the case hardening process and your surface hardening process is that in surface hardening you do not change any kind of chemical composition on the surface, whereas in case hardening you change the chemical composition of the surface to make it hard as compared with the core. The remaining core is kept soft and the outer surface is made hard by means of changing chemical composition. Now when I'm saying changing chemical composition, you can make the surface harder by adding the carbon or free carbon or atomic carbon on the surface of the component. So in carburizing process, the carbon atoms are you can say added on the surface of the component. Hence it is called as carburizing. Okay. So we have studied three types of carburizing process. Now let us begin with the next type of case hardening process, that is called as nitriding. So, in case hardening, what you do, you increase the case depth, or you can say you increase the layer of your case by increasing the amount of carbon. Okay, so in this nitriding process, uh, we use nitrogen instead of carbon. So you can increase the surface hardness of the component by means of adding either carbon or either nitrogen, or by adding carbon and nitrogen combinedly. So you can use carbon as well as nitrogen to increase the surface hardness. So in carburizing we use carbon, and in nitriding we use nitrogen to increase the hardness of the surface of the component. Okay, so nitriding process is quite similar to the carburizing process. Here in this nitriding process, we use nitriding medium like the carburizing medium that we uh, use in carburizing process. So the nitriding medium is dependent on the type of nitriding. So by means of nitriding medium, when this nitriding medium and the component comes in contact at 550 degrees Celsius, and they spend some time together, the low carbon steel component, it gets you can say nitrided, and the case of that component increases. Now what happens in that process in actual is that whenever the low carbon steel components, one more thing, the process, this nitriding process is specially applied for low carbon steel which is having uh, lower amount of carbon, and these low carbon steel components are brought in contact with the nitriding medium at 550 degrees Celsius. After bringing them together, these components are kept there for 24 to 72 hours, and after this time is completed, they are cooled by means of air, and based on the nitriding medium, the various based on the type of nitriding, the mediums are then chosen. So first type of nitriding is gas nitriding, and second one is liquid nitriding. Okay, so for gas nitriding process we use NH3, that is ammonia, and in this NH3 multiple, or you can say the reaction is given here. So in gas nitriding we use ammonia, two molecules of ammonia. When they are heated they dissociate, they get separated, the nitrogen hydrogen bonding breaks, and there is
production of free nitrogen, or it is also called as atomic nitrogen, where only nitrogen is present, and again there is separation of hydrogen atom. So this free nitrogen atom, it gets accumulated on the surface of the component. ये जो भी फ्री नाइट्रोजन है, ये क्या होता है, हमारे कंपोनेंट के सरफेस के ऊपर accumulate होता है, because the temperature is very high, so it gets easily accumulated on the surface, and it increases the hardness of the surface. Okay, so again similarly gas नाइट्राइडिंग में अमोनिया यूज होता है, उसी जगह पर लिक्विड नाइट्राइडिंग में मोल्टन साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा हमारा साइनाइड हमने पहले एक प्रोसेस में देखा है, लिक्विड कार्बोराइजिंग में देखा है, उसी तरीके का यहाँ पर लिक्विड साइनाइड यानी मोल्टन साइनाइड यूज किया जाता है, जिसकी मदद से फ्री नाइट्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है, और वो फ्री नाइट्रोजन हमारे सरफेस के ऊपर क्या होता है, केस फॉर्म करता है। इसी को बोलते हैं नाइट्राइडिंग। इसके एडवांटेजेस, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस? सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस देयर इज no requirement of any further heat treatment. Then the notch sensitivity increases. जो भी कंपोनेंट्स है उनके ऊपर नॉचेस प्रोड्यूस नहीं होते। नॉचेस मतलब जो हमारे कई बार शीट्स रहते हैं, शीट्स के कॉर्नर्स पर हमको छोटे छोटे चिपिंग दिखती है, छोटे छोटे टुकड़े हुए भी दिखते हैं, इस तरीके के नॉच इन कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोड्यूस नहीं होते। देन द हार्डनेस इज हाई, हाई हार्डनेस हमको यहाँ पर देखने मिलती है। देन द प्रोसेस इज क्लीन। सो जहाँ यहाँ पर प्रोसेस जो है वो काफ़ी क्लीन हमको देखने मिलती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये प्लेन कार्बन स्टील के लिए सूटेबल नहीं है। जो सबसे सादा वाला स्टील रहता है, जिसको हम प्लेन कार्बन स्टील बोलते हैं, जिसमें सिर्फ आयन और कार्बन है मिक्स, इसके अलावा कोई भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं रहता है, सो ऐसे स्टील के लिए ये सूटेबल नहीं है। इसकी हार्डनेस वो इंक्रीज करता है ये प्रोसेस, बट जितनी हमको चाहिए उतनी अमाउंट में वो इंक्रीज नहीं कर पाता है, सो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उसके ऊपर नहीं है। सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लेन कार्बन स्टील। हाउएवर लो कार्बन स्टील, जो अलॉय स्टील्स है जिनके अंदर लो कार्बन है, कार्बन का अमाउंट कम है, बट उसके अंदर दूसरे अलॉइंग एलिमेंट्स है, तो इसके लिए ये सुटेबल है। देन थिन डेप्थ इसकी है 0.5 mm तक, हमको ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 mm तक की डेप्थ हम अचीव कर सकते हैं, इससे ऊपर ज़्यादा मुश्किल है। देन टाइम कंज्यूमिंग है, सिंस होल्डिंग टाइम ज़्यादा है इसलिए बहुत टाइम कंज्यूम करता है। और इसके बाद इसको प्रिसीजन मशीनिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी केस रहेगी ये बहुत थिन रहती है, इसके लिए इसकी मशीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो आपको प्रिसीजन मशीन्स या इसके ऊपर जो भी मशीनिंग करना है उसमें प्रिसीजन होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ योर नाइट्राइडिंग। देन लेट अस गो अहेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट केस हार्डनिंग, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी सरफेस है इस सरफेस के ऊपर केमिकल कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं, जैसे कार्बन बढ़ा रहे हैं, नाइट्रोजन बढ़ा रहे हैं, सो देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इन सरफेस हार्डनिंग, जो हम हमारा कन्वेंशनल हार्डनिंग करते हैं, जिस तरीके का हमने कन्वेंशनल प्रोसेस देखा है, हीटिंग करना, कूलिंग करना, हीटिंग करना, होल्डिंग करना, क्वेंचिंग करना, ये जो प्रोसेस है, इसी तरीके का सरफेस हार्डनिंग भी रहता है। बट सरफेस हार्डनिंग में क्या करते हैं हम, कि कंपोनेंट को पूरा की पूरा हीट करने के बजाय जो आउटर सरफेस है या जो बाहरी एरिया है या बाहरी जो पेरीफेरी है, उसको ही हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिसमें से एक टाइप है फ्लेम हार्डनिंग। अब इस फ्लेम हार्डनिंग में क्या किया जाता है कि दिस फ्लेम हार्डनिंग इज सुटेबल फॉर दिस हीट ट्रीटमेंट इज सुटेबल फॉर मीडियम कार्बन स्टील। ये एक मीडियम कार्बन स्टील के लिए बहुत सुटेबल है। स्पेसिमन को एक फ्लेम की मदद से क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ब्रेजिंग की जाती है या गैस वेल्डिंग की जाती है, उसके अंदर हम हीट यूज करते हैं, एक फ्लेम इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। सो उसी तरीके की ये कुछ सिमिलर काइंड ऑफ फ्लेम रहती है। इस फ्लेम से क्या किया जाता है कि जो आउटर सरफेस है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और यही आउटर सरफेस इमीडिएटली एक वाटर स्प्रे की मदद से, वाटर जेट्स की मदद से क्या किया जाता है, क्वेंच किया जाता है, जिस वजह से बिना किसी तरीके का केमिकल कंपोजिशन चेंज किए हम उस सरफेस को क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। सो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पर ये
हीटिंग टॉर्च का इस्तेमाल किया गया है। ये हीटिंग टॉर्च क्या कर रहा है, वर्कपीस के इस एरिया को हीट कर रहा है जो टॉप सरफेस है, और इसको हीट करने के बाद में इस वर्कपीस को हम क्या कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में पास कर रहे हैं। ओके, सो जिस वजह से इसका जो मूवमेंट है, सॉरी, दिस वर्कपीस इज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, उसको इस डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। ओके, sorry, this torch is movable here, I'm extremely sorry, this torch is moving here। so torch का मूवमेंट कुछ इस तरीके से है। तो जो भी स्पेसिमन है वो यहाँ पर गर्म हो रहा है इस रीजन में, और जब वो वाटर जेट के नीचे आ रहा है तो ये वाटर जेट क्या कर रहा है, इसको क्वेंच कर दे रहा है। सो क्वेंचिंग के बाद में इतना जो एरिया है या जो हीटेड एरिया है वो एकदम से कूल हो रहा है, रैपिडली कूल हो रहा है, जिस वजह से उसके अंदर मार्टेनसाइट फॉर्म होते हैं और इसका सरफेस जो है वो हार्ड बन जाता है। सो दिस इज यू कैन से अ काइंड ऑफ फ्लेम हार्डनिंग। अब ये फ्लेम हार्डनिंग जो है वो गियर्स पे जनरली की जाती है, लार्ज गियर्स। तो यहाँ पर हमने उसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन यूज़ किया है गियर का। सो ये गियर जो है, ये गियर को क्या किया जाएगा कि रोटेट किया जाएगा। ओके, इसके रोटेशन के साथ में यहाँ पर टॉर्च रहेगी, जो टॉर्च क्या करेगी, इसके टिथ को हीट करेगी, और साथ ही साथ में दूसरे साइड से जो रहेगा हमारा वाटर जेट रहेगा, जो इसको क्या करेगा, हीटेड टिथ को कूल करता जाएगा या क्वेंच करते जाएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ फ्लेम हार्डनिंग। इसके टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स। सो उसमें से पहला टाइप है स्पॉट हार्डनिंग। स्पॉट हार्डनिंग में क्या करते हैं कि जो भी वर्कपीस है वो और टॉर्च दोनों भी स्टेशनरी रहता है एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, जहाँ पर हमको वो सरफेस हार्डनेस बढ़ाना है। उस पर्टिकुलर स्पॉट पर क्या किया जाता है, हीट अप्लाई की जाती है। जैसे ये है, समझ लो, इस पर्टिकुलर स्पॉट पर क्या किया जाएगा, हीट अप्लाई किया जाएगा, और उतने ही स्पॉट को क्या किया जाएगा, हमारे वाटर जेट की मदद से क्वेंच किया जाएगा। इसमें दोनों भी, स्पेसिमन भी और साथ ही साथ में हमारा टॉर्च भी कैसा रहता है, स्टेशनरी रहता है एक ही जगह पर। ओके, जैसे स्पॉट वेल्डिंग है उसी तरीके का कुछ ये स्पॉट हार्डनिंग प्रोसेस है। देन प्रोग्रेसिव फ्लेम हार्डनिंग है। प्रोग्रेसिव फ्लेम हार्डनिंग में क्या किया जाता है कि जो टॉर्च है वो मूव होता है और वर्कपीस जो है वो स्टेशनरी है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे प्रोग्रेसिव हार्डनिंग का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। सो इस प्रोग्रेसिव हार्डनिंग में क्या होगा कि टॉर्च मूविंग रहेगा, मतलब टॉर्च आगे पीछे होगा, और जो स्पेसिमन है या जो वर्कपीस है वो एक जगह पर स्टेशनरी रहेगा। ओके, सो ये एक टाइप है। देन एक स्पिनिंग का टाइप है जो गियर्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें जो टॉर्च है वो एक स्पेसिफिक जगह पर लगाया जाता है। ओके, सो जैसे ये गियर है, ये गियर के लिए एक टॉर्च रहेगा यहाँ पर जो हीट या फ्लेम अप्लाई करेगा इस टीथ के ऊपर, और ये जो भी वर्कपीस है, ये वर्कपीस क्या होगा, रोटेट होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर एक दूसरी वाटर जेट लगाई जाएगी जो क्या करेगी, हीटेड एरिया को क्वेंच करेगी। सो दिस इज स्पिनिंग टाइप ऑफ फ्लेम हार्डनिंग। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर है हमारा प्रोग्रेसिव स्पिनिंग, जिसके अंदर वर्कपीस तो रोटेट होता ही है, साथ ही साथ में टॉर्च भी क्या है, मूव होता है वर्कपीस के साथ में, ताकि उसको बेहतर सरफेस हार्डनिंग हम कर सके। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लेम हार्डनिंग। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है? सो द एप्लीकेशंस आर, जो शाफ्ट्स है उसके लिए यूज होता है, उसके सरफेस को हार्ड करने के लिए यूज होता है, स्प्लाइन शाफ्ट्स के लिए यूज होता है, बड़े साइज के गियर्स है उसके लिए यूज होता है, लेथ के वेज है, मतलब जो लेथ के आप रेलिंग्स देखते हैं, वेज देखते हैं, उसके लिए भी यूज होता है। ओके, सो दिस इज योर फ्लेम हार्डनिंग एंड दिस इज स्पेसिफिकली डन फॉर मीडियम कार्बन स्टील। देखो, हम मीडियम कार्बन स्टील के लिए क्यों कर रहे हैं, एक सिंपल फंडा याद ध्यान में रखना कि जो आपका कन्वेंशनल हार्डनिंग है या जो भी हम विदाउट केमिकल कंपोजिशन जो हार्डनिंग करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ मीडियम से हाई कार्बन स्टील के लिए हो सकती है। क्यों हो सकती है? बिकॉज द मेन रीजन इज दैट इसमें जो कार्बन का अमाउंट है, अगर ज्यादा रहता है तो ही वो कार्बन हमारे मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब उसका हार्डनेस इंक्रीज होता है जब उसके अंदर कार्बन का अमाउंट ज्यादा रहता है। ओके, तो जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को बिना कंपोजिशन चेंज किए के हार्ड बना सकते हैं।
ओके, वही अगर लो कार्बन स्टील है तो लो कार्बन स्टील में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें कार्बन का ही अमाउंट कम है। जो हार्ड बनाने वाला चीज़ है, जो हार्ड करने वाला कंपोनेंट है, वही अगर कम रहेगा तो उसको आप हार्ड इजीली नहीं बना सकते। ओके, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, लो कार्बन स्टील के लिए कार्बन का अमाउंट इंक्रीज करना पड़ता है। ओके, जब जाके मटेरियल क्या होता है, हार्ड होता है। सो दिस इज अ जनरल, मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो। देन सेकेंड टाइप ऑफ सरफेस हार्डनिंग है इंडक्शन हार्डनिंग। आपने इंडक्शन कुकर, इंडक्शन हीटर देखा होगा। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंडक्शन हार्डनिंग में जैसा फ्लेम हार्डनिंग रहता है, फ्लेम हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट के सरफेस को फ्लेम से हीट करते हैं और वाटर जेट मारकर, वाटर स्प्रे मारकर क्या करते हैं, उसको हम कूल करते हैं। सो इस इंडक्शन हार्डनिंग में क्या रहेगा, एक इंडक्शन हीटिंग एपरेटस रहेगा जो एक सर्कुलर टाइप का रहता है। ओके, एक आधे पानी के टैंक जैसा वो एपरेटस रहता है। ओके, और इस टैंक में बीच में एक हमारा कंपोनेंट जो है सर्कुलर कंपोनेंट के लिए स्पेसिफिकली यूज होगा, लॉन्ग शाफ्ट जो है, लंबे शाफ्ट उनके लिए यूज होगा ये डिवाइस। और इस डिवाइस के बीच में जो है तो स्टील कंपोनेंट रखने का अरेंजमेंट रहता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से स्टील कंपोनेंट थ्रू आउट पास कर सकते हैं। ओके, एक आधा हॉलो क्या बोल सकते हैं, शेल के जैसा है, और इस शेल में से क्या हो रहा है, हमारा स्टील का रॉड बीच में से उसके छेद में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओके, सो ये जो स्टील कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इस स्टील कंपोनेंट में क्या है कि ये रॉड है, ये रॉड क्या होगा, जो हमारा अ, जो भी हमारा इंडक्शन हीटिंग एपरेटस है, इसके अंदर से ये कंपोनेंट क्या होगा, इस तरीके से पास होगा। इस इंडक्शन हीटिंग फर्नेस का शेप जनरली सिलेंड्रिकल रहता है, जिसके अंदर हीटिंग कॉइल्स रहते हैं। हीटिंग कॉइल्स रहते हैं मतलब जो इंडक्शन कॉइल्स है वो रहते हैं, उसको हम इंडक्शन कॉइल्स बोलते हैं। ये इंडक्शन कॉइल क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को बाय मींस ऑफ इंड्यूसिंग इंडक्शन, बाय मींस ऑफ इंडक्शन इसको गर्म करते हैं, मतलब इसको हीट करते हैं। तो ये पूरा की पूरा कंपोनेंट आउटर सरफेस में क्या हो जाएगा, हीट होगा जब इसके अंदर से पास होगा। ओके, और जब ये इस में से पास होता है तब हीट होता है, और जब ये कंपोनेंट इसमें से एग्जिट होता है तब इन्हीं जो इंडक्शन हीटिंग apparatus है इसके एंड पर वाटर स्प्रे के लिए जेट्स लगाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इन एग्जिटिंग कंपोनेंट्स को क्वेंच करते हैं, जिस वजह से पहले हीटिंग होगा और बाद में क्या होगा, उसके ऊपर पानी की मदद से क्वेंचिंग होगा। सो ये बहुत रैपिड प्रोसेस रहती है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, बड़े बड़े कंपोनेंट्स के लिए भी यूज़ की जाती है। और इसमें जो केस डेप्थ हमको मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज इंडक्शन की वजह से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कोर तक हीटिंग हमको देखने मिलती है। इस वजह से इसकी केस डेप्थ जो है वो 4.5 से 8 mm तक हमको देखने मिलती है। इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, लोअर फ्रीक्वेंसीज की 1000 हर्ट्स है, हायर फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्स है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे जो इसमें बेनिफिशियल चीज़ है वो है इसका टाइम ऑफ हीटिंग। तो जो भी आप कंपोनेंट इसमें से पास करते हैं उसके मास पर, उसके साइज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, उसके साइज की वजह से जो भी कंपोनेंट है वो 5 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और साथ ही साथ में पानी के जेट की वजह से वो रैपिडली क्वेंच भी होगा। सो यू गेट दिस रैपिड हीट ट्रीटमेंट फॉर दिस दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, जैसे कि शाफ्ट है, स्प्लाइन शाफ्ट है, कोई रॉड है, कोई अलग और कुछ चीज़ें हैं जो सिलेंड्रिकल है, उसके लिए ही यूज़ होता है, गेयर्स में नहीं यूज़ होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट केस हार्डनिंग एंड सरफेस हार्डनिंग। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विथ द हीट ट्रीटमेंट ऑफ steels. Only the part which is remaining is Domini and quench test that we will see in next video. Please till then, please stay safe, stay at home and keep learning. Thank you.